السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ غوث سلفی اہل سنت الجماعت اہل حدیث سے ہوں۔ یہ ٹاپک وہ ایک بار میں مغرب کی مسجد نماز میں پڑھنے گیا تھا، تو نماز ہونے کے بعد حضرت مولانا حضرت جنہیں کیا بولی تراویح کے 20 رکعت کے بارے میں، تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اس سے کم مت پڑھو، جو کم پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ایسا بولے۔ کیا بولے؟ تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ۔ تو میں بھی اس کے بعد حضرت سے بات کیا، تو اس میں کیا ہوا تھوڑا بہت میں بتلاؤں گا، اور تھوڑا بہت میں اس میں تراویح کتنے رکعت ہے سنت یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پھر تو پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں۔ سنت کی معنی آپ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے، جو صحابہ کرام جو بھی کام کیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے، اس کو سنت کہا جاتا ہے، یہ دھیان میں رکھیے۔ اور سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جو عمل ضروری کرنے کو سنت موقدہ کرتے ہیں، یعنی کرنا، اس کو ضروری کرنا، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعت سنت ہے، وہ سنت موقدہ ہے، ضروری پڑھنا ہے، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ آتا کو میں ایسا بولنے کا مطلب نہیں ہے، پڑھنا بہتر سنت ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اور فرض تو چھوڑنا ہی چھوڑنا نہیں، یہ آ کے سنت موقدہ بولے تو ضروری کرنا، اس کا معنی آتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے سنت موقدہ 20 رکعت کر کو بولے، تو میں ان سے دلیل مانگا، تو اچھا شام میں آؤ انشاءاللہ ہمیں بات کریں گے، ہم عشاء کے بعد ہو تراویح کے بعد ہو بول کے بیٹھے، اور بخاری شریف لے کے بیٹھے۔ تو میں گیا الحمدللہ، ہمارے بیچ میں بات چیت ہوئے، میں ایک طالب علم ہوں، وہ عالم ہے ماشاءاللہ، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ وہ ثبوت آپ اپنا ثبوت دعوے پہ ثبوت دینے کی بجائے مجھ سے سوال بہت سے کرنے لگے، حالانکہ میں بھی الحمدللہ بہت بولنے کی کوشش کی ہوں، وہ پوری ریکارڈنگ ہے، لیکن میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں ریکارڈنگ، صرف وائس ڈالتا ہوں کلیئر کرنے کے لیے، یہ وائس حضرت بھی سنتے ہیں، اس میں غلط کچھ بھی نہیں بولتا، جو ہوا وہی بتاؤں گا۔ تو میں ان سے ایک ہی پوچھا تھا سوال، حضرت آپ نے جو دعویٰ کیا سنت موقدہ 20 رکعت تراویح بول کے، وہ حوالہ دے دو، وہ دلیل دے دو حدیث سے، کوئی بھی حدیث سے میرے کو وہ سنت سے دکھا دو کر کے میں بولا تھا۔ تو صحابہ کرام نے تو حضرت مولانا نے بتایا آپ اجماع کو نہیں مانتے۔ ہاں، اجماع کی بات نہیں آئی، ہاں اجماع 2 رقم کا اجماع ہوتا ہے، ایک رقم اجماع کو بولتے ہیں اجماع امت، دوسرا اجماع کسے بولتے ہیں؟ اکثریات کو بھی اجماع کہتے ہیں، عرف عام میں اکثر زیادہ لوگ عمل کرے تو اس کو بھی اجماع بولتے ہیں، لیکن صحیح اجماع کسے بولتے ہیں؟ سب فرقہ کے عالمہ ایک بات کو متفق ہے تو اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ کیا نہیں، اکثریات زیادہ ہے انہوں کرتے ہیں تو اسے آپ کو اجماع کو بولنا یہ جہالت پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اکثریات کرتے ہیں تو اسے اجماع ہے بولنا یہ بیکار بات ہو۔ دوسری بات تو ہاں اجماع کی بات ہی نہیں ہوئی، ہماری بات ہوئی تو کیا ہوئی؟ سنت موقدہ کو میں دلیل لیتا ہوں، بولیے نا صحیح بخاری لے کے بیٹھی ہے، اور میں کیا بولا ہوں، میں بخاری سے ثابت کرتا ہوں
तरावी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत 8 रकात सुन्नत करके मैं बोला था। मैं उस टाइम को मैं एक ही बात पे बैठा था, आप दिखाओ, आपका दावा था, आप दिखाओ बोला था। उन्होंने ये वो बोलते गए बन के, सिर्फ बोलते गए ना, ये इजमा है, वो इजमा है, ये इजमा है, वो फलां किताब में, लेकिन किताब में जो खोल को दिखाई नहीं। मैं इमारत चाहता था, जो इमारत तो बोल रहे थे वो इमारत में ही देखना चाहता था, वो नहीं दिखाए, सिर्फ वो बोले, लेकिन इजमा की बात बोले। वो सुन्नत किसको बोलते हैं, सुन्नत मुक्कदा किसको बोलते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी करो करते थे और करो बोले करना ज़रूरी, उसको बोलते हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं ना वो काम, तो इसको बोलते हैं सुन्नत मुक्कदा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात रात की नमाज 20 रकात कभी भी पढ़े सो हमको दलील नहीं मिलती। और दलील मिलती है सही बुखारी हदीस नंबर 904 में और 1120 और 1140 में। इसके रावी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है और फरमाती है अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़े, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। यह बात नोट दिस पॉइंट, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़े। और आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में 3 दिन जमात से नमाज पढ़ाए। ये भी आती है बुखारी शरीफ में 720/9, 730/4, 1120/9 में ये हदीस आती है। रात में रमज़ान के महीने में 3 दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ नमाज पढ़ाए। तो ये बुखारी हदीस की रात की नमाज 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ाए है। उसमें अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं 4 रकात 3 रकात बोल के फरमाते हैं। तो हमारे हज़रत ने एक सवाल किया, तो इसको आप तरावी की नमाज बोलते हैं, तो इसमें आपको तो 4 रकात का जिक्र है, अब हमें तरावी की रकात 2 रकात पढ़ते हैं, ये कैसा है? वो रकात वो तरावी की रकात नहीं, वो नमाज नहीं, वो कहीं का उसका मफ़हूम क्या है को पूछे थे। लेकिन मैं आपको वो ये मौजू नहीं होता था, हमारा मौजू हमारा ये था सुन्नत मुक्कदा साबित करने का, कि मैं जवाब नहीं दिया। अब इस ऑडियो में जवाब देना चाहता हूँ। इसका जवाब ये है कि सही बुखारी की ही हदीस, और वह उस हदीस में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर पे खड़े हुए थे, खुतबा दे रहे थे, और एक शख्स ने सवाल किए, या रसूलल्लाह रात की नमाज मैं कैसे पढ़ूं? वहाँ पे जिक्र आया अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कितनी रकात, यहाँ पे जिक्र आ रहा है कैसे पढ़ूं रात की नमाज। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, सही बुखारी हदीस नंबर 470/2 और सही मुस्लिम, यही हदीस मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने भी रिवायत की है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1740/9, सेम हदीस इसमें आती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 रकात करके पढ़ो, और फजर के पहले आप वितर की नमाज एक ही पढ़ो, लेकिन एक नमाज पढ़ो, 1 रकात पढ़ो, वितर ही सही, क्योंकि वितर पूरे नमाजों को तारक कर देती है, यानी मुकम्मल कर देती है, ऐसी अल्फाज है। क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ, इसलिए मेरे को बोलने में दिक्कत है, थोड़ा समझ लीजिए। और इस हदीस को लेंगे तो सही बुखारी से ही साबित होता है कि तरावी 11 रकात के 8 रकात के अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे हज़रत बोलने लगे, ये अलग नमाज करने के हिसाब में बोलने लगे, अगर ये नमाज अलग हुई तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात तरावी पढ़े थे? अगर 20 रकात पढ़े हुए तो मुक़ल्लिदीन कोई भी हो हमको दिखाना पड़ेगा दलील के साथ, 20 रकात प्लस ये 11 रकात, पूरे 30 को 1 रकात हमको दिखाना पड़ेगा। ये तो कभी भी नहीं दिखा सकेंगे, क़यामत तक नहीं दिखा सकेंगे क्या? इसलिए तो ये सवाल आता है, ये अलग वो अलग बोले तो दिखाना पड़ेगा। तो यही नमाज को तो साबित करो कैसा हो, तो
एक नमाज के 3 नामा होते, नमाज एक ही जो उसके 3 नामा। ईशा के फौरन बाद पढ़े तो उर्फ आम में उसे कहा जाता है तरावी, और वही नमाज जो आधी रात के हिस्से में पढ़े तो उसे कहा जाता है क़यामुल लैल। इसका जिक्र आता है कुरान में, इसका हवाला आता है, ऐ नबी आप खड़े रहो रात के आधे हिस्से में अल्लाह की याद में, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है करके अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामुल लैल फ़र्ज़ कर दिया है। इसीलिए नहीं आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 3 दिन जो नमाज़ पढ़े हैं, आके इसमें बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए नहीं आया कि ये रात तुम पे, ये नमाज तुम पे फ़र्ज़ ना हो जाए, इसीलिए नहीं आए थे। और वही नमाज आके फजर के पहले तक पढ़े तो उसे कहेंगे तहज्जुद। एक ही नमाज के ये तीन अलग अलग नामा है, इसको अलग अलग करके साबित अगर करना चाहे तो कर ही नहीं सकते। अगर तरावी अलग, क़यामुल लैल अलग, वाजिब क्या हुआ, क़यामुल लैल अलग, तहज्जुद अलग बोले तो कितने रकात हो गया? क़यामुल लैल 11 रकात मान के चलो, और आपको तहज्जुद 11 रकात वितर के साथ मान के चलो, और 20 रकात तरावी मान के चलो, ये पूरे मिलकर कितने हो जाते हैं? इसलिए ये मफ़हूम गलत है। सुन्नत क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है रात की नमाज 11 रकात के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। मैंने हवालों के साथ दे दिया। और आते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर की बात। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात पे जमा किया बोलते हैं, ये सरासर गलत बात है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशक जमा किया, जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन 20 रकात के पे नहीं। इसे कोई भी मुझसे साबित करना चाहे तो साबित कर सकती, वो दलील दिखा को आप, दावा आपका है तो आप देंगे दलील। मेरा जो दावा था मैं दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया इंशाल्लाह। ये ऑडियो हमारे हज़रत भी सुनेंगे, और उम्मीद है हमारे हज़रत बोले थे साबित कर दो तुम, मैं कल से ही तरावी 8 रकात पढ़ाऊँगा बोल के हमारे हज़रत बोले थे। इंशाल्लाह हज़रत ये ऑडियो मैं कल ही डालूँगा यूट्यूब पे, आपको लिंक भेजूँगा। इंशाल्लाह आप परसों से इंशाल्लाह तरावी 11 रकात पढ़ाएंगे करके उम्मीद करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ सबको सुन्नत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।